to be seated in their respective places. And also we are waiting for our few more guests to arrive. So I request all of them who are present here to be seated. The Annual Day Celebration 2017 of Mishra's Residential Public School. I'm Shujeev and I'll be your host for today's event. What a pleasant day it is. Clearly, the weather has aligned with our wishes. The sun and I bid you a warm welcome. And how enthusiastic and exuberant all of you look. It is indeed the perfect atmosphere for a perfect event such as this. I thank you all for coming and joining us here today. I'm glad to be able to welcome those of you who have been with us for a long time now, as well as those of you who are new to our family. I look forward to fullest of your participation in the program with your clapping hands. Speaking no further, I invite Aryan to deliver his welcome message. Good afternoon. I, Aryan, am honored to have a chance to address you today. I welcome all the reverend, honorable members of management, media persons, alumni, and all my dear friends. May I take this opportunity to welcome you all and to extend a further word of welcome to everyone here this day. The annual day of our school is certainly a moment we should always enjoy. If you take a quick look around you, I am sure you will all agree that our new school has come a long way in the last years. It all started as a dream. Mishra's Residential Public School envisaged the dream of establishing a world-class educational institution, a school that would guide future generations of enlightened worlds. We would extend our generations to all the role players that have made it possible for the dream to become a reality. Today marks the occasion, the annual day celebration of our school. You are all most welcome to stay here this evening. I hope you enjoy the rest of the evening's program and thank you for sharing this special event with us. Thank you. Thank you, Aryan. Now may I please request our principal, Mrs. Sudha Pandey, to welcome our distinguished guests. Please, ma'am. My respected, distinguished guests, all the members, distinguished members of the school managing committee, dear parents, my alumni, and all my dear students. I welcome all of you today in this glorious moment to celebrate the annual function of our school. I am really very happy to have you all here to celebrate this auspicious moment. आज का दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए कि हमारा स्कूल आज एक मुकाम पर पहुंचा है और बहुत ही इस सत्र में 2016-17 में हमने CBSE नई दिल्ली से संबद्धता प्राप्त की है। हमारा आज का दिन इसलिए भी बहुत खास है कि हमारे विद्यालय परिसर में शहर के बहुत ही गणमान्य व्यक्ति, विशिष्ट व्यक्ति हमारे यहाँ पधारे हैं। हमारा आज का दिन इसलिए भी बहुत विशिष्ट है कि हमारे स्कूल मैनेजिंग कमेटी के सभी डिस्टिंग्विश्ड मेंबर्स आज इतने सालों बाद एक साथ यहाँ एकत्रित हुए हैं और इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि हमारे एक्स स्टूडेंट्स, हमारा एलुमनाई ग्रुप हमारे बीच हमारे आमंत्रण को स्वीकार करके यहाँ पधारे हैं। So I welcome all of you today in our school premises to celebrate this annual function of Mishra's Residential Public School. Thank you for accepting our invitation and being with us here. Now, I welcome Mrs. Neetu Devi, the Deputy Mayor of our Devghar district. I also welcome Mrs. Rita Chaurasia, the social worker and the ward parshad. I also welcome Mr. Tara Chan Jain,
a very distinguished personality of Devghut district, I welcome Professor Ramnandan Singh, Sri Pradeep Singh Dev sir, Sri Dhiren Chhatarhala ji sir. I welcome all the distinguished members who are present here. Now, to begin the lighting of the lamp, as per our tradition, we start our program with the lighting of the Mangal Deep. To lighten this Mangal Deep, I call upon Mrs. Neetu Devi to please come on the stage, Mrs. Rita Chaurasia, Tarachand Jain sir, Professor Ramnandan Singh sir, please. Now I also call upon on the stage the Secretary of the School Managing Committee, Mr. Astal Jha, and the Trustee of the School Managing Committee, Shri Balram Chaudhary sir, to come on the stage and help our guests to light the lamp and share and be a part of this glorious moment. Thank you, sir. Thank you, ma'am. The afternoon today has brought within its purview the mood of flawless festivities and exciting enjoyment. As it is said, Atiti Devo Bhava. So, to welcome our guests and our dear audience, I call upon Adiptika to mesmerize us with her exotic performance. Please put your hands together for Adiptika Chaudhary. स्वागतम् 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 सुस्वागतम्
you, Deepika. That was marvelous indeed. Coming together is beginning. Keeping together is progress. And working together is success. And that's what we call as teamwork. We all have tried to make this gala even magnanimous. As Gerald M. Hopkins rightly quoted, I do not think I have seen anything more beautiful than the flower I've been looking at. I know the beauty of our Lord by it. Well, there's nothing more left to say. May I please request Ms. Shweta Shroff, Mrs. Usha Pandey, and Ms. Shravani Chakrabarti with little Ananya to welcome our guests with the token of our love. Please excuse me. थोड़ा सा Now, to shed some light on the long journey of our school, आज के समारोह में उपस्थित ऑनरेबल गेस्ट्स, पेरेंट्स, मीडिया प्रेस के प्रतिनिधि, स्टूडेंट्स, ऑनरेबल प्रिंसिपल एंड टीचर्स, देवी और सज्जनों, मैं इवन एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन पुनः आप सबों का स्वागत करता हूँ। मैनेजिंग कमेटी ऐसा महसूस करती है कि आपकी शुभकामनाओं के साथ ही ये संस्था ग्रोथ के रास्ते पे है और अभी बहुत कुछ हासिल करना है। आप जानते हैं कि वर्षों से हमारा प्रयास था कि हम इस संस्था को CBSE दिल्ली से एफिलिएट कराएं ताकि हमारे अभिभावकों को, स्टूडेंट्स को पढ़ाई में दिक्कत ना हो। ये लंबी यात्रा थी, लेकिन एक संकल्प था, वो ये सत्यमेव जयते। हम सत्य के रास्ते से डिगेंगे नहीं, हटेंगे। प्रयास चलता रहा और अप टू 10th लेवल हमें एफिलिएशन मिला है। साथ साथ मैं आपको सूचित करूं कि स्टैंडर्ड 12 तक के लिए भी संस्थान ने CBSE को आवेदन दे रखा है। उसका ड्यू एक्नॉलेजमेंट किया जा चुका है। साथ साथ चीज़ें प्रोसेस में हैं। मेरी उम्मीद है इस वर्ष में ही वह ग्लोरी, वह स्टेटस भी इस विद्यालय को प्राप्त हो सकेगा। मित्रों,
हमने प्रिंसिपल्स के साथ कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, लेकिन हम आभार प्रकट करना चाहते हैं वर्तमान झारखंड सरकार के प्रति, जिन्होंने केवल आवेदन को विचार करके एनओसी दिया और सीबीएसई दिल्ली की सरकार ने हमें एफिलिएशन दिया। इसके लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं, आभार प्रकट करते हैं सीबीएसई दिल्ली के ऑफिशियल्स को, साथ साथ जो भी इस क्रिया में इन्वॉल्व रहे हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, उन सबों के प्रति हम आभार प्रकट करते हैं। मित्रों, एक और खास चीज मैं अपने बच्चों से भी कहूंगा, इस पर ध्यान दें, और शिक्षक भी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने समाज को, विश्व को बहुत कुछ दिया है, लेकिन अभी कुछ चीजें ऐसी आई हैं जिससे हमें सतर्क रहने की जरूरत है। वो ये है कि हमारे लोग, हमारे बच्चे कुछ चीजों से इस तरह अटैच हो गए हैं, जैसे मोबाइल फोन से वो हर समय उसे ऑपरेट करते हैं, टेलीविजन सेट से सेल्फी लेने की एक व्यवस्था शुरू हो चुकी है। इसके कारण एक सोशल सिस्टम जो हमारे देश का संभल रहा है वो टूटने लगा है। आप देखेंगे बच्चे स्कूल से आते हैं और वो मोबाइल पे गेम खेलना शुरू करते हैं। इसके वजह से सामाजिकता, अपनापन, माँ बाप से बच्चों की दूरी बढ़ने लगी। गेस्ट आते हैं फिर भी बच्चे अंदर में मोबाइल पे कुछ न कुछ देखते रहते। विद्वानों ने ऐसा कहा है, महसूस किया है कि इस पर नजर रखने की जरूरत है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बार बार आगाह किया है कि आज के बच्चे ही कल के श्रेष्ठ नागरिक होंगे। अगर ये परंपरा कायम रही तो क्या हो? उन्होंने इसके अंजाम के रूप में कहा है कि वेस्टर्न परंपरा के अनुरूप हमारे यहाँ भी लोग ओल्ड एज होम्स में जाना शुरू करेंगे। इसकी शुरुआत मेट्रोज में हो चुकी है। जिस माँ बाप ने अपने वर्तमान को समर्पित कर दिया है अपने बच्चों के लिए, उनके प्रगति को सर्वोपरि रखा है। अगर कल को बच्चों को इतना वक्त न हो कि उनसे हालचाल पूछ सकें तो कैसा लगेगा, मैं इस पर कुछ कहना नहीं चाहता। अतः ये आवश्यक है कि हमारे शिक्षक इस पर विशेष रूप से ध्यान दें। बच्चों को क्लासरूम टीचिंग के अलावा ये बताएं कि उनका संस्कार बिल्डिंग कैसे हो सकता है, वो किस तरह अपने आप को इस समाज के साथ समन्वित करके प्रदेश को और देश को आगे ले जा सकते हैं। हमारी संस्कृति में कहा गया है, हम सभी जानते हैं कि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोऽपि सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ति आयुर्विद्या यशोवर्धनम्। अगर कोई श्रेष्ठ गुरुजनों का सम्मान करते हैं उससे सभी चीजें बढ़ती हैं। क्या क्या? आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ता है, यश बढ़ता है और स्ट्रेंथ बढ़ता है। क्योंकि आज हम डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में हैं, जितने लोग हमारे साथ हैं वही हमारी ताकत। तीसरी बात, आज का ये युग कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का युग है, जहां हर संस्था का ये दायित्व है कि वो अपनी जिम्मेदारी समाज के प्रति भी निभाएं। जिस समाज में वो काम करते हैं उसके लिए भी उनकी भूमिका है। हम ये भी देखते हैं कि समाज में बहुत सारे लोग ऐसे हिडन ट्रेजर की तरह हैं जिन्हें लोग जानते भी नहीं।
हमारे मैनेजिंग कमेटी ने ये फैसला किया है कि इस तरह के जो भी लोग हैं, वो चाहे प्रेस मीडिया से हों, लीगल फील्ड से हों, वो चाहे शिक्षा के क्षेत्र से हों, साइंस टेक्नोलॉजी से हों या समाज सेवा के क्षेत्र से हों, उन्हें हम बुलाकर एनुअल डे में सम्मानित करेंगे। क्या आप सहमत हैं? ये उचित होगा। इसके माध्यम से भी एक मैसेज हम अपने स्टूडेंट्स को, अपने समाज को देना चाहते हैं। वो ये है, आज अगर हम अपने बड़ों को सम्मान देंगे, कल जो बच्चे हैं वो हमें सम्मान देंगे और ये यात्रा चलती रहेगी। बड़े शहरों में एक खास बात है, वो ये है कि कुछ एरियाज डिफाइंड होती है एज एजुकेशनल हब, जहाँ की बहुत एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो चाहे इंजीनियरिंग के हों, मेडिकल के हों, मैनेजमेंट के हों और सेकेंडरी एंड प्राइमरी एजुकेशन, उसे इंस्टीट्यूशनल एरिया कहते हैं। अगर कल को हमारा देवघर शहर जो बाबा नगरी है, ये एजुकेशन के हब के रूप में डेवलप करता है, तो जितने भी लोग हैं उन सबों को इसका लाभ होगा। विशेष रूप से हमारे स्टूडेंट्स को उनका सर्वांगीण विकास होगा, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगा और वो इस प्रदेश में ही नहीं, देश में ही नहीं, अपितु पूरे विश्व में इस नगरी का नाम रोशन कर सकेंगे। इसके लिए एक छोटा सुझाव है जो हमारे फेलो इंस्टीट्यूशंस के लिए, जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं, उन्हें एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाकर काम करने की जरूरत है। उन्हें अनहेल्दी कंपटीशन नहीं रखना है और हम इसमें हर समय, हर बिंदु पर उनके साथ हैं। हर संस्था के कुछ प्लस एंड माइनस पॉइंट्स होते हैं। प्लस पॉइंट्स को हम एकत्रित करें और इसे इंटर्न स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करें ताकि हमारे लोग आकाश की ऊंचाइयों को छू सकें। मैं समझता हूँ इससे प्रदेश का कल्याण होगा और शिक्षा जगत को भी लाभ होगा। अंततः मैं इतना ही कहूँगा कि आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय देकर यहाँ उपस्थिति दी है, इसके लिए आभार तो मैंने प्रकट कर ही दिया है। साथ साथ इस तरह के मेडल प्रोग्राम्स जब आयोजित किए जाते हैं, क्योंकि इसके आयोजन में हमारे बच्चों ने ही सब कुछ किया है, उसमें कहीं त्रुटि, कहीं ऊंच नीच हो सकती है। मेरी करबद्ध प्रार्थना है, इसके लिए आप क्षमा करेंगे अगर कहीं त्रुटि हो, कहीं कुछ कमी हो। साथ साथ आपके सुझाव, आपके मार्गदर्शन की हम अपेक्षा करेंगे, हम उसका स्वागत करेंगे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। Thank you, sir. May I please invite our principal for the honoring of the guests. On the behalf of the Managing Committee of Mishra's Residential Public School, I would like to call upon the distinguished members to come on the stage and receive a token of love, a token of respect from our school. So I would like to call upon, first of all, I would like to call Mrs. Neetu Devi, Deputy Mayor of Devghar District. Ma'am, please come on the stage and receive. To honor Mrs. Neetu Devi, I would like to call Neelam Ma'am, Mrs. Neelam Chaudhary, Trustee of the School Managing Committee, to honor her and pay respect and love from our school. Thank you, ma'am, for accepting our invitation and becoming a part of this glorious moment. Please give a big hand. Now, I would like to call
Mrs. Rita Chaurasia, a renowned personality of the Devghar district. And to honor her, I would like to call up Mrs. Renuka Jha to come on the stage. Please, ma'am. There is not much to say about Rita ma'am. She is a very famous social worker. And in all the programs, especially the school programs, she surely accepts the invitation and always ready to give her blessings to the school and to the school students. Thank you, Rita ma'am. Thank you, Renu ma'am. Now, I would like to call Mr. Tara Chinjan on the stage. And to honor him, I would also like Honorable Sri P. Mishra sir to please come and honor our guest. Mr. Tara Chinjan sir and Mr. P.C. Mishra sir to honor him. So busy schedule, our invitation and this glorious moment. Thank you, sir, for coming here and accepting our invitation. Thank you, sir. Please give a big hand. Thank you, sir. Now I would like to call, I would request Professor Ramnandan Singh, and to honor him, I would like to call Mr. H.L. Jha, the Secretary of the Managing Committee. आज सर ने मुझे मॉर्निंग में ही आते ही कहा कि सुधा मेरे घुटनों में बहुत दर्द है, लेकिन विद्यालय का इनविटेशन गया तो मैं इनकार नहीं कर पाया. Thank you, sir, for his love, abundant love, and the pain he has taken to accept our invitation. Thank you, sir. Now, I would like to call Mr. Pradeep Singh Dev, a very famous social worker of our town, and to honor him, I would like to invite Mr. R.K. Mishra sir to come on the stage to honor him. Mr. Pradeep Singh Dev, famous social worker, activist, and he has accepted our invitation in spite of his busy schedule. Thank you, sir. Thank you, Mishra sir. The founder member of the school, I would like to invite Mr. Nityanand Mishra sir to come on the stage. It is very difficult for him, but still he has the spirit of a 16-year-old boy. So please give a big hand for Mr. Nityanand sir. He is the founder member of the school. He has given all his energy, his strength, his intelligence to establish the school. And the school management really is thankful to him. And to honor him, I would like to invite Mr. Balram Chaudhary sir, the trustee member of the school managing committee. To honor him, please sir, come on the stage. Mr. Nityanand Mishra sir, he has been the vice principal of R.K. Mission Devghar and also the principal of Navodaya Vidyalaya. So please, welcome him. Thank you sir for giving your energy, giving us your energy and your blessings to this school. And next, I would like to invite her as well as Mr. Triveni Verma ji. Mr. Triveni Verma sir
please come on the stage. And to welcome him, I would like to invite Mr. Ramchandra Prasad Singh. Mr. Ramchandra Prasad Singh, I would like to call him, invite on the stage to honor popularly Triveni Swarma sir is known as Netaji in our neighbors. So I would like to invite Mr. Ramchandra Singh. Yes, sir. In your neighbor, but in Jharkhand, Bihar, both is अच्छा सर ने कहा कि मेरे नेबर में ही नहीं, झारखंड बिहार में ये नेताजी के नाम से ही प्रसिद्ध है. वेलकम सर, वेलकम नेताजी. Please give a big hand. Thank you, sir, for accepting our invitation. Now, ताराचंद जैन सर के बारे में थोड़ा एक विस्तृत एक संक्षिप्त जानकारी मैं दे दूं, परिचय दे दूं. वैसे ये परिचय के मोहताज नहीं है, पूरे शहरवासी इनको जानते हैं, लेकिन ये अध्यक्ष ताराचंद जैन सर अध्यक्ष हैं झारखंड राज्य दिगंबर जैन धार्मिक न्यास बोर्ड के. इन्हें मंत्री का दर्जा प्राप्त है झारखंड सरकार की ओर से. सो थैंक यू सर फॉर एक्सेप्टिंग आवर इनविटेशन. Now I would like to call our anchor person Srijeev to continue the cultural program. Thank you, everyone. Our country, India, our motherland, has given us that what we can never repay. And it is our duty to be ready to serve our country whenever it needs us. Patriotism runs in our blood, and that will be well displayed by the upcoming performance, I Love My India. Please welcome the group with a huge round of applause. मुश्किल है दिल का लगाना, परदेस आना, परदेस आना. ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया. ये मेरा इंडिया, I love my India. वतन मेरा इंडिया, सजन मेरा इंडिया. ये दुनिया एक दुल्हन, एक दुल्हन. ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया. ये
की राह पे चलो, ना भेदभाव कोई रहे, सबके लिए जगह दिल में हो. Open your heart and spread your love to the world, 'cause we're all the same. Let there be peace, let there be faith. अब मेरे संग कहो. Thank you guys. I'm feeling much more patriotic indeed. Anyways, moving on. Children have always been a sign of innocence. Tagore once said, "Children are a sign that God still loves mankind." So I invite my dear little champs to fill our minds with joy with their innocent moves. Ladies and gentlemen, please welcome the blooming buds of nursery. देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई. देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई. बारिश है या आसमान ने छोड़ दिए हैं नल खुले कहीं. हो हम जैसे देखे ये जहां है वैसा ही, जैसी नजर अपनी खुल के सोचे आओ, पंख जरा फैलाओ, रंग नए बिखराओ. चलो 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 नए ख्वाब बुन ले. इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों के दिल से चल बनाए आशियाँ.
Now, it is time for us to hear some wise words. May I please invite Mr. Tara Chinjan to deliver his message and shower his blessings upon us. Please, sir. स्कूल के इस आयोजन पर मैं आयोजकों को बधाई देने के साथ साथ आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस मौके पर मुझे बुलाया। आज की इस सम्मान सभा में उपस्थित मेरी पुत्रीवत डिप्टी मेयर नीतू जी, रीता चौरसिया जी, रामनंदन जी, शहर के प्रतिष्ठितगण, यहाँ की LMC कमेटी के मेंबरगण, गतिशील करो कदमों को मंजिल पास नहीं है। गतिशील करो कदमों को मंजिल पास नहीं है। काल चक्र गतिमान किसी का दास नहीं है। जीवन की एक एक सांसों को सार्थक कर डालो, क्योंकि सांसों का पल भर भी विश्वास नहीं है। बंधुओं, अभी आपने सुना जो हमारे LMC के हेड ने जो बातें कही, मैं कुछ उन पर प्रकाश डालने की बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। क्योंकि 1996 में यहाँ की स्कूल ने कुछ ऐसा व्यवहार किया लोगों के साथ, अभिभावकों के साथ, जो कि अपने आप को रिनाउंड स्कूल मानती है। उस स्कूल ने अभिभावकों के साथ दुर्व्यवहार शुरू किया। मैं उस दिन उस पूरे वार्ड का वार्ड पार्षद था। मैंने उनसे कहा कि उन्होंने उस वक्त उसकी माफ़ी मांगी। मैंने कहा कि इस माफ़ी से काम नहीं चलेगा, आप राष्ट्रभक्ति की और हिंदुत्व की बात लेके चलो, नहीं तो आपके बगल में मैं बड़ी लाइन खींच दूंगा। और आज आपको मालूम है कि आज DAV स्कूल देवघर का एक रिनाउंड स्कूल है। मैं इस स्कूल को भी, चूँकि इस स्कूल के जो पूर्व अभिभावक हैं वो मेरे साथ सेल्टेक्स विभाग में हमारे बहुत पूर्व परिचित हैं। अभी मैं शिवरात्रि महोत्सव समिति का महामंत्री हूँ। काफ़ी व्यस्तता है, आप देख रहे होंगे मेरी बोली भी किस तरह हो गई है। लेकिन उसके बावजूद भी जिस सम्मान के साथ इन्होंने मुझे याद किया, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और आशीर्वचन देने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। मैं आज आप लोग को एक अच्छी बात बता देना चाहता हूँ, जो हो सकता है कि जो बोले LMC मेंबर, उनसे वो संबंधित बातें हैं। क्योंकि आज हमारा शिक्षा का स्तर कहाँ चला गया है। लॉर्ड मैकाले का नाम आप लोगों ने सुना होगा। लॉर्ड मैकाले ने 2 फरवरी 1835 को हाउस ऑफ कॉमन्स ब्रिटिश संसद में अपना एक भाषण दिया। उस भाषण की मैं सही उल्लेख जो उस टाइम जो उन्होंने भाषण दिया, उसको करीब 8-10 पंक्तियों में मैं बता देना चाहता हूँ। मैंने भारत की चतुर्दिक यात्रा की है और मुझे इस देश में एक भी याचक अथवा चोर नहीं दिखा। मैंने इस देश में सांस्कृतिक संपदा से युक्त उच्च नैतिक मूल्यों तथा असीम क्षमता वाले व्यक्तियों के दर्शन किए हैं। मेरी दृष्टि में आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत, जो कि इस देश की रीढ़ है, उसको खंडित किए बिना इस देश पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते हैं। मैं प्रस्ताव करता हूं, उन्होंने ब्रिटिश संसद में यह प्रस्ताव रखा कि मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस देश की प्राचीन शिक्षण पद्धति उनकी परिणाम स्वरूप उनको परिवर्तित कर दें। शिक्षण संस्कृति को परिवर्तित कर दें कि परिणाम स्वरूप भारतीय सोचने लगे कि जो कुछ भी विदेशी एवं आंग्ल है वही श्रेष्ठ एवं महान है। इस तरह वे अपना मान, रुझान, आत्मगौरव तथा अपनी मूल संस्कृति को खो देंगे और वे वही बन जाएंगे जो हम चाहते हैं। पूर्ण रूप से हमारे नेतृत्व के अधीन एक देश है। और बंधुओं, आपको मालूम है कि अंग्रेजों ने हमारी संस्कृति को तोड़ा और आज हम बिखर गए हैं। और आज बिखर के हम बिल्कुल अमेरिकन स्टाइल पर जा रहे हैं। आज की जो हमारी शिक्षा पद्धति है, वो शिक्षा पद्धति किस प्रकार है, ये आपसे छिपा हुआ नहीं है। इसलिए हम लोगों को आज़ादी मिली है और आज के भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट अफसर भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। आज हमारे नेता का मनोबल गिराते हैं। राष्ट्र सर्वोपरि है। आप स्कूल के माध्यम से बच्चों को राष्ट्रभक्ति की भावना जगाएं।
जब आपने मुझे मैडम ने कहा था कि मैडम आप बच्चों को आशीर्वाद देंगे, तो देखिए बच्चों को कहने की और क्या बातें हैं कि बच्चों में यदि नेशनलिटी, राष्ट्रीय भावना नहीं आएगी, क्योंकि आपको मालूम है कि आज पहले लोग कहते थे कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे मेले, मेले पर मरने वालों का यही आखिरी निशान होगा। क्या आपको मालूम है कि आज शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर, सुभाष चंद्र बोस को कितने याद करने वाले हैं? आज सिर्फ नेहरू परिवार छाया हुआ है और किसी का कहीं कोई नाम नहीं है। आज जब राष्ट्र पर मरने वाला बीएसएफ सिक्योरिटी फोर्स का एक सिपाही जब मरता है तो उसको पूछने वाला कोई नहीं है, और जब शाहरुख खान रईस की प्रोपोगंडा करने ट्रेन से उतरता है तो इतनी भीड़ होती है कि वहाँ भीड़ में लोग दबे कुचल के मर जाते हैं। क्या यही हमारी राष्ट्रीय भावना है? ये आज़ादी हमें मिली है, इस आज़ादी को हमें सुरक्षित रखना है। ये नींव हमको बच्चों में डालनी है, और ये नींव कौन डाल सकता है? जो अंग्रेजी पद्धति से स्कूल चला रहे हैं वो नहीं डाल सकते हैं। वो किसी कीमत पर नहीं चाहेंगे कि मैकाले का जो सिद्धांत था वो सिद्धांत हम तोड़ें और हम वापस उसी जगह चले जाएं, ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे। इसलिए मैं कई जगह इन बातों को कहता हूँ और कहता हूँ कि हम लोग शिक्षण पद्धति को बहुत कुछ सुधारें। सबसे बड़ी बात क्या होती है, जो अभी गीत में बच्चों ने गाया कि माता पिता हमसे तुम दूर मत हो जाना। मैं आज इस मंच के माध्यम से बच्चों को यह सुनाना चाहता हूं कि आज आपके साथ आपके माता पिता गार्जियन आए होंगे। आप कहते हैं कि माता पिता हमसे दूर मत जाना, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि माता पिता को बच्चे दूर करते हैं या माता पिता बच्चों को दूर करते हैं? ये एक इतना ज्वलंत क्वेश्चन हो गया है। आज क्या हमारी परिपाटी हो गई कि आज हमारे जिस प्रकार हम एक उम्मीद लेके पहले होते थे, हमारे 2 या 3 बच्चे होते हैं घर में अच्छे, फिर आ गए हम 2 हमारे 2, आज हो गया हम 1 हमारा 1। आज एक बच्चे पर आप पूरा जीवन, पूरा बुढ़ापा आप उस पर आश्रित कर देते हैं और उसी पर सारा निर्भर करके आप उसको अपनी जीवन भर की पूंजी उसकी पढ़ाई में लगा देते हैं। लेकिन आपको उम्मीद है, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं आपसे कि 100 में 90% लड़के अपने माँ बाप को वृद्धावस्था आश्रम भेजना पसंद करेंगे, वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ नहीं रखना चाहेंगे। इसलिए मैं आपको एक उदाहरण बिल्कुल अभी दूंगा ताजा, क्योंकि आज ये बच्चों से मिली हुई बात है, बच्चों के कान में एक बात जाए। अभी पिछले दिनों प्रभात खबर में एक न्यूज आया था कि एक बुढ़िया माँ वृद्धाश्रम में रह रही थी, वहाँ उसको समाचार आया बेटे का कि माँ मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। उसने अपनी सखियों को कहा कि आज मेरा बेटा आ रहा है, आज मैं यहाँ से वृद्धाश्रम से घर चली जाऊँगी। बेटा जब आया तो बेटे को उसने कहा कि बेटा मैं दादी नहीं बनूंगी, मैं तुम्हारी दाई बन के काम करूंगी, मुझे ले चलो, मेरा सामान पैकिंग है, मैं तुम्हारे साथ जाने को तैयार हूँ। उस बेटे ने क्या कहा आप सुन लीजिए। बेटे ने कहा माँ हवाई जहाज पर तुम्हारे पोते पोती को मैं छोड़ के आया हूँ हवाई अड्डे पर। अभी नरेंद्र मोदी ने 1500 के नोट बंद कर दिए, उस नोट को बंद करके मैंने बैंक में तुम्हारे खाते में डाल दिए हैं, तुमसे फिर चेक पर दस्तखत कराने में आया हूँ, तुम जल्दी दस्तखत करो, मैं यहाँ से तुरंत चला जाऊंगा। बंधुओं आज क्या है ये किस पर हम डिपेंड कर रहे हैं? ये बातें कहाँ से आएंगी? इन बातों को कौन सिखाएगा? इन बातों को बच्चों को यदि आज हम नहीं सिखाएंगे तो कौन सिखाएगा? कोई दूसरा सिखाने वाला नहीं है। क्योंकि आपको यह विश्वास है कि जिस मूर्ति को, जिस पत्थर की मूर्ति को इंसान बनाता है और मंदिरों में प्रतिष्ठापित करता है, उसको प्राण प्रतिष्ठा देता है, उसकी तो हम पूजा करते हैं। लेकिन जिस माँ बाप ने हम लोग को पैदा किया उसको हम क्या करते हैं? बुढ़ापे में बेइज्जत करते हैं। जब तक हम अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करेंगे, जब तक हम उनको बुढ़ापे में नहीं देंगे, तब तक हमारा ये जीवन, हमारी हिंदू संस्कृति और हमारा ये भारतीय संस्कृति बेकार है। इसलिए मेघालय के सिद्धांत को हमने याद किया कि मेघालय जो चाहता था वो हो गया और भारत की संस्कृति टूट गई। आज स्कूल में इससे ज़्यादा कोई राजनीतिक बात करने की जरूरत नहीं है।
मैं बच्चों को आप इस माध्यम से कहना चाहता हूँ कि बच्चों, तुम भारतवर्ष के भविष्य हो और भारतवर्ष रात दिन विदेश में चारों तरफ नाम करते जा रहा है। तुम्हारे पर हमें बहुत नाज है, क्योंकि तुम्हें चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन। और भविष्य में सपने सजाओ, भविष्य में सपने सजाओ, क्योंकि मंजिलें उनको मिलती हैं, मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। इसलिए ख्वाबों से कुछ नहीं होता, रौते से उड़ान होती है। इसलिए हौसले रखो और हौसलों से उड़ान होगी। इसलिए पंखों का भरोसा मत करो। इसलिए इस बात को लेके जीवन में सपने सजाओ, अच्छी संस्कृति लो। और जिस प्रकार तुमने अभी माँ बाप का साथ मांगा, बुढ़ापे में माँ बाप तुम्हारा साथ चाहते हैं, तुम उनको साथ दो। मैं पुनः मिश्रा रेसिडेंशियल स्कूल के जितने भी यहाँ कार्यकर्तागण हैं, प्रिंसिपल हैं, LMC मैनेजमेंट कमेटी के जितने अभिभावक हैं, मैं उनको तहे दिल से सम्मान देता हूँ कि आपने मुझे एक छोटे कार्यकर्ता को बुला के यहाँ एक सम्मान दिया। चूँकि मैंने जल्दी की है कि शिवरात्रि महोत्सव समिति का मैं महामंत्री हूँ। 24 तारीख को शिवरात्रि है और इसलिए हमारे सारे काम, बहुत से काम हैं, इसलिए मैं आज इनके आग्रह को टाल नहीं सका और मैं जल्दी से यहाँ से आपसे विदा लेता हूँ, जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।